Hello, I am happy to inform you that now my lessons are also available on Unacademy, which is a top Indian platform for students appearing in various competitive exams. You may please download this app from Google Play Store and search for my lessons. At present, I have uploaded few lessons of NEET and class 11th and will continue for full courses of class 11th, 12th, JEE, IIT and others. I'm also going to take up one course for the students appearing for class 12th board. It will start mid-January and will continue for 1 month. In this course, there will be revision of complete physics of class 12th on live classes. Yes, live interactive classes on your mobile for complete physics revision course. Be on lookout. The course will be launched shortly. Register on given time. Now we are doing again the second part of this question. It is asking for dispersion without deviation. Dispersion without deviation. What does that mean? We have an instrument or transparent medium here. In that transparent medium, the white light enters from this direction. No deviation, and it goes straight. This is mean color yellow, this is red, and this is blue. The yellow goes like this, no deviation, but the red one this way and the blue one goes this way. You see, these two are going in different directions. So there is an angle between them. That means dispersion has taken place. It will go like this. So there is dispersion and we see clearly the different colors. Here is red and here is violet, yellow. The light is dispersed into different colors, which was here. But the mean ray, yellow, that is going straight. So how much is the deviation here? Answer, deviation is 0. How to achieve this? To achieve this, again we use two type of prism and there is a combination of the prism. Combination of the prism in such a way that what should be 0? Answer is dispersion should be without deviation. Deviation should be 0. Then we get the 0 deviation. After that we will see, because we have used different type of prism. Prism हमने दोनों अलग अलग यूज किए हैं. एक कम डिस्पर्स करता है, एक ज्यादा करता है. ओके, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो डिस्पर्शन कुछ ना कुछ आएगा. ओके, लेट अस सी दैट. फर्स्ट वी विल मेक डेविएशन 0. पहले ने हमको क्या डेविएशन दिया? कौन पहला कौन दूसरा? क्राउन पहला और दूसरा. यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स. एक क्राउन ग्लास का, एक फ्लिंट ग्लास का. क्राउन का एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और फ्लिंट का एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है. क्राउन का म्यू, फ्लिंट का म्यू में हमने डैश लगा दिया. ओके, ये दोनों का सम 0 होना चाहिए. इससे हमको इन दोनों एंगल की इसका रेशियो मिलता है. लेट अस टेक इट ऑन दिस साइड. One will become positive, one will remain negative. So this will be mu y minus 1
for crown is equal to negative mu dash y minus 1. This is a dash. इससे हमको कंडीशन मिल गई. व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन? कि दोनों का म्यू हमने लिया, वो तो उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन दोनों का ए हम मैन्युफैक्चर करते हैं. वो जो ए हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें उन दोनों का रेशियो हम क्या रखेंगे? वो रेशियो ऐसा होगा दैट ए अपॉन ए डैश, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू डैश वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई माइनस 1. ये रेशियो हमको रखना है और हमको पता है म्यू डैश फ्लिंट के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्राउन के लिए म्यू की वैल्यू कम होती है. तो ये हमको एक रेशियो मिलेगा. नेगेटिव शोज दैट ए एंड ए डैश शुड बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और फिर से इज हियर, दिस इज क्राउन, दिस इज फ्लिंट. इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है, इसका एंगल भी बड़ा है. ओके, ये वाइट लाइट की मीन लाइट है. मीन कलर कौन सा? येलो. इसके दोनों तरफ रेड और वायलेट, ये पूरा मिक्सचर ऐसा गया. ये येलो बेस की तरफ मुड़ती है, ये बेस की तरफ मुड़ी, पर यहाँ आगे जाकर ये और ऐसा नहीं मुड़ सकती क्योंकि यहाँ पर इसको फ्लिंट ग्लास मिल गया. और फ्लिंट का जो प्रिज्म है ये हमने उल्टा रखा है, तो ये किधर बेंड करेगा? अपने बेस की तरफ. तो इसने ये अपने बेस की तरफ इसको बेंड किया और अपने बेस की तरफ बेंड किया, ये थोड़ा सा बेंड किया और उसके बाद ये जब बाहर निकला तो इस तरह से ये बाहर आ गया. और ये हम देखते हैं कि इसके सेम डायरेक्शन में ये आ गई. अब यहाँ से जो कलर जा रहे हैं यहाँ से बनेगा वॉयलेट. इसने इसको किया ऐसे और ज़्यादा बेंड किया. वॉयलेट ज़्यादा बेंड होता है तो वो वॉयलेट यहाँ आ गया, वॉयलेट. रेड यहाँ से, ये रेड है येलो के ऊपर, और रेड इससे कम बेंड होता है और ये आ गया ऐसे रेड. मेरी डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसी ऐसी हो सकती है पर सीक्वेंस ये रहेगा. तो ये कौन सा है? रेड. और ये कौन सा है? वॉयलेट. दोनों के बीच एंगल आ गया तो ये डिस्पर्स हो गए, सीक्वेंस उल्टी हो गई. अगर सिंगल प्रिज्म से जाता तो नीचे वॉयलेट होता, ऊपर रेड होता, पर ये फ्लिंट की ताकत इससे ज़्यादा है तो इसने वॉयलेट ऊपर कर दिया, रेड नीचे कर दिया. मीन जो येलो है उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी. तो ये होता है दिस इज येलो एंड देयर इज नो डेविएशन. और ये वायलेट और रेड इधर चले गए तो ये क्या हो गया? डिस्पर्शन. तो इसकी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है, देखिए, दिस इज कंडीशन फॉर नो डेविएशन. अब इन दोनों में से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका ये मतलब है ए की वैल्यू ज़्यादा होगी क्राउन के एंगल की और फ्लिंट के एंगल की वैल्यू कम होगी. एक चीज़. दूसरा, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक का ए अगर ऊपर है तो दूसरे का नीचे होगा, अगर एक का नीचे है तो दूसरे का ऊपर होगा. ओके, तो ये तो नो डेविएशन की कंडीशन है. पर अभी तक हमने मैथमेटिकली ये प्रूफ नहीं किया कि अगर डेविएशन नहीं हो रहा है तो डिस्पर्शन होगा कि नहीं होगा. हो सकता है डिस्पर्शन भी ज़ीरो हो गया हो. सो लेट अस सी कि जब हम इस कंडीशन में रखते हैं तो डिस्पर्शन होता है या नहीं होता. यानी ए डैश की वैल्यू हम इस ए के इस रेशियो में लेते हैं. अगर इस रेशियो में ए और ए डैश लिया जाए तो डिस्पर्शन ज़ीरो है या कोई नंबर है, उसको देखते हैं कितना होता है. तो डिस्पर्शन की वैल्यू निकालने के लिए डिस्पर्शन बाय क्राउन एंड देन डिस्पर्शन बाय
फ्लिंट, दोनों को ऐड कर देते। तो क्राउन का डिस्पर्शन हमने लिया म्यू वी माइनस म्यू आर, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। फ्लिंट का डिस्पर्शन म्यू डैश फॉर वायलेट, म्यू डैश फॉर रेड एंड ए डैश, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया फाइनल डिस्पर्शन। ओके, अब ए डैश की वैल्यू हमको पता है, पिछले इक्वेशन से हमने निकाली है कि ए डैश की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। क्या था वो इक्वेशन? वो इक्वेशन था ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। तो ए डैश कितना हुआ? ए इंटू म्यू माइनस 1, उसको लिख लेंगे। सो दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर एज इट इज ए प्लस म्यू डैश माइनस म्यू डैश आर। और अब ए डैश की जगह हमने लिखा, ए डैश यहाँ चला गया, ये ए इंटू म्यू माइनस 1, ये दोनों येलो के लिए है। ओके, म्यू माइनस 1 और डिवाइडेड बाय म्यू डैश वाई माइनस 1। ये ए डैश की वैल्यू जो कि हमने ये ली, क्यों यहाँ से ली? क्योंकि ये कंडीशन है हमारी नो डेविएशन की और ये हमको चाहिए, इसलिए ए डैश की वैल्यू हमको यही लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये डिस्पर्शन की वैल्यू आ गई। क्या ये वैल्यू ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है? तो इसके लिए हमने दोनों में से पहले ए को कॉमन निकाल लिया। ओके, उसके बाद म्यू वाई माइनस 1, इसको भी निकाला। म्यू वाई माइनस 1 से म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, इससे इन दोनों को डिवाइड किया। जब इससे डिवाइड किया तो ब्रैकेट लगा के इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ये कॉमन निकाला, इसको डिवाइड किया। इसको डिवाइड करने से म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, नो दिस वन। ओके, इसके बाद ए कैंसल हो गया, यहाँ भी ए था, ए और नीचे भी, सो दिस इज कैंसल। प्लस नो, यहाँ पर जब हम इसको लाए थे तो यहाँ साइन क्या था? माइनस, सो वी मस्ट पुट इट एज माइनस। दैट वाज माय ओमिशन, मेरी गलती थी, तो ये माइनस हमने यहाँ लिख लिया। माइनस दिस इज म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर टू बी डिवाइडेड बाय म्यू डैश y माइनस 1। ए बाहर जा चुका है। इस तरह से हमने म्यू वाई माइनस 1 ए बाहर लिया, तो यहाँ पर ये बाहर आ गया, इसमें ये टर्म नहीं थी तो इसके डिनोमिनेटर में ये क्रिएट हो गई, ए कैंसल हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट नाउ। ओके, अब थोड़ा इस टर्म को पहचानिए, ये है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो इसे हमने लिखा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, इसको भी आप पहचानते हैं, ये क्या है? दिस इज डेविएशन। आप चाहे तो इसे म्यू के टर्म्स में रख सकते हैं। लेट्स राइट इट दिस वे, म्यू येलो that is mean value of mu minus 1 a in the bracket, this is dispersive power minus dispersive power. Okay, this one. So लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि ये फ्लिंट क्लास की डिस्पर्सिव पावर है। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? इस पूरे को निगेटिव कर दीजिए, माइनस ए म्यू माइनस 1
omega dash minus omega. Now this is not zero क्योंकि दोनों की पावर में डिफरेंस होता है. फ्लिंट की डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होती है तो ये नॉट ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है. इसलिए ये पूरी क्वांटिटी कैसी है? नॉन ज़ीरो. Hence there will be dispersion. तो डिस्पर्शन की कुछ वैल्यू आएगी. निगेटिव क्या दिखाता है? निगेटिव जो हमने बनाया था, निगेटिव ये दिखाता है कि ये डिस्पर्शन रिवर्स होगा. नॉर्मली डिस्पर्शन में क्या होता है? वाइट लाइट जाएगी, रेड ऊपर और वायलेट नीचे. अगर निगेटिव है तो वायलेट ऊपर, रेड नीचे. तो इसमें कॉम्बिनेशन में ये उल्टा हो जाता है, वायलेट ऊपर और रेड नीचे, बट देयर इज ए डिस्पर्शन. So what is the condition you have seen and how much is the dispersion that we have seen. So this is combination of prism which has dispersion without deviation and you have seen the condition for that. Thank you.